Hello and welcome to all of you in my next video. This video is NPO part, it should be 9. So, this is your NPO part 9 because the previous video was the version of NPO part 8. Okay, so this will be the NPO part 9 as I'm starting this video. Firstly, I have to announce the name of the first 5 winning candidates. Okay, so this is the list of the first 5 candidates. You can go through it. Okay. Now, as I promised that I will explain the question that I am giving you in this video. So, here I am going to explain that particular question. So, first of all, just take a look. What was the question? Right here in front of you. Either this. This is your question. This is your question, and in this question you can see that only 3 types of adjustments are there. The first adjustment is subscription outstanding on last year and current year. Okay. Next is salary outstanding 6,000 and rent is prepaid of 1 month. Okay. Last is opening assets. The society has owned furniture of 1,20,000 and books of rupees 50,000. Okay. And one more thing within the question, one interesting thing is there. On the payment side, you can see on the 5th number, like it is the content or maybe the element of the 4th one, that is buy fixed deposit with bank on 30th September 2017 at the rate of 10% per annum. We are calling it like hidden adjustment in terms of accountancy. Okay, I can call it like that. I can call it like the internal adjustment. Okay, so now I am removing this question now. Now, I'm going to explain this question. Okay, the best thing is just to explain the adjustment of the question, and question will be solved by itself. Okay, so we are going to solve this question by last words. Okay, the last adjustment is opening assets. Club has 2 types of opening assets. First is opening, first is furniture, second is books. ठीक है, क्लब के पास फर्नीचर भी था, बुक भी थी, लेकिन ये देखना है कि क्या साल में हमारे रिसीट एंड पेमेंट के दौरान या किसी एडजस्टमेंट में हमने फर्नीचर या बुक में से किसी को भी नया कुछ खरीदा या नया कुछ बेचा. चलिए पहले फर्नीचर के बारे में बात करते हैं. आप फिर से अपने क्वेश्चन को देख लीजिए. ये रहा क्वेश्चन आपके सामने. क्या आपने साल भर में कोई नया फर्नीचर खरीदा? पेमेंट साइड में देखिए, आपने कोई फर्नीचर खरीदा? जी हाँ, बिल्कुल खरीदा. 1,05,000 रुपए का आपने फर्नीचर और खरीदा, जबकि आपके पास पहले से ही 1,20,000 का फर्नीचर है. आपने 1,05,000 का और खरीद लिया, तो ये फर्नीचर आपको पुराने फर्नीचर में ऐड कर देना है. क्या आपने कोई फर्नीचर बेचा? आप इसी क्वेश्चन में देखिए, रिसीव्ड साइड में आपने 50,000 की कीमत का फर्नीचर बेच दिया है, तो आपको आपके 1,20,000 फर्नीचर में जो आपने नया खरीदा उसको ऐड कर लीजिए, जो आपने बेच दिया उसको लेस कर दीजिए. जो आपका फाइनली फर्नीचर बचेगा वो आपकी करंट ईयर बैलेंस शीट का होगा. लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आपके पास 1,20,000 का था, लेकिन इस साल की आपकी वैल्यू जो होगी वो आपकी 1,20,000 प्लस 1,05,000 ही हो जाएगा, 2,25,000. उसके बाद आप इसमें से 50 जब माइनस कर दोगे आपका बचेगा 1,75,000 रुपए. 1,75,000 द फाइनल फर्नीचर विल बी. Okay, right after that then check whether you have purchased any kind of books. Yes, definitely. आपके पास 50,000 की बुक्स पहले से थी, और आपने क्वेश्चन की तरफ आप देखिए, आपका जो 5वां आइटम लिखा हुआ है, ठीक है, आपका 5वां आइटम वो है बाय बुक्स 70,000. आपने 70,000 की किताबें और खरीद ली. 50,000 की पहले से थी, 70,000 की आपने और खरीद ली. तो आप जरा बताइए, अब आपके पास कितना बुक हो गया? 70,000 अभी 50,000 का पहले था, आप खुद कैलकुलेट करके बताइए कितना हो गया. इतना कठिन भी नहीं है. 50,000 था, 70,000 और आ गया, 1,20,000 हो जाता है ये. ठीक है, क्या आपने कोई बुक्स बेची? आप बिल्कुल पेमेंट साइड में देखिए, आपने कोई भी बुक नहीं बेची. ठीक है, चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ. आपके पास ये फर्नीचर पुराना आपके पास था, ओपनिंग है, तो दोनों के दोनों ओपनिंग एसेट्स में जरूर जाएंगे. ठीक है, ये पहला फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये हमारी बुक्स ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी. लेकिन जब न्यू वाली में हम आएंगे तो न्यू बैलेंस शीट में ये दोनों सेम एज इट इज. ये लास्ट ईयर की हमारी बैलेंस शीट में तो जैसे वैल्यू दी हुई है सेम टू सेम हम पुटअप कर देंगे. लेकिन जब हमारी करंट ईयर बैलेंस शीट की बात होगी तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी होगी? हम इसमें नया खरीदा हुआ न्यू परचेज का, ठीक है, मैंने आपको बोला 1,05,000 हम इसमें जोड़ देंगे और
सेल्स किया हुआ, इसमें से हम माइनस कर देंगे जो कि फर्नीचर की वैल्यू थी 50,000। तो जब हम 1,20,000 में 1,05,000 जोड़ेंगे और 50 घटा देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी बचेगी? 1,20,000 प्लस 5 1,25 प्लस 100, टोटल मिलाकर 2,25,000, 50 कम कर देंगे तो 1,75,000। न्यू बैलेंस शीट में आपका फर्नीचर कितना हो जाएगा? 1,75,000, 1,75,000। और बुक्स की अगर बात करें तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में चेंजमेंट होंगे, लेकिन लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में सेम टू सेम। करंट ईयर की बैलेंस शीट में आपने 70,000 की न्यू परचेज की है, तो जब हम न्यू परचेज कोई चीज करेंगे तो उसे हमें ऐड करना पड़ेगा। 50,000 आपकी प्रीवियस वैल्यू थी, दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा? 1,20,000। बुक्स आपने किसी भी तरह से सेल की नहीं है, तो ये दोनों आइटम पुरानी बैलेंस शीट में 1,20,000 फर्नीचर, नई बैलेंस शीट में 1,75,000 फर्नीचर। वर्किंग नोट्स का ये होगा। उसके बाद बुक्स पुरानी बैलेंस शीट में 50,000 और नई वाली बैलेंस शीट में 1,20,000। क्यों हो जाएगी? क्योंकि 70,000 आप उसमें ऐड करोगे बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखते वक्त। ओल्ड बुक्स मींस लास्ट ईयर बुक्स 50,000 प्लस न्यू परचेज 70,000, दैट विल बिकम 1,20,000। गॉट इट? अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे हटाने जा रहा हूं। अब हमारे पास दूसरा एडजस्टमेंट जिसकी हम बात करते हैं, उसमें लिखा हुआ था कि रेंट इज एडवांस विद 1 मंथ। इसका मतलब साल भर में हमारे पास 12 महीने होते हैं, हमने अगले साल के लिए 1 महीने का रेंट दे दिया है, यानी अगले साल के 1 महीने का रेंट हमने एडवांस में दे दिया है। तो अगर हमने 1 महीने का रेंट एडवांस में दे दिया है तो इसका मतलब हमारा जो रेंट है टोटल वो हमारे 12 महीने का है, प्लस 1 महीने का अगले साल का, कुल मिला के 13 महीने का है। ठीक है, हमारा जो रेंट है वो 13 महीने का है। तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अपना रेंट तो सिर्फ 12 महीने का चाहिए, क्योंकि हमारी पॉलिसी है ना पिछला कुछ हमें चाहिए ना अगले साल का कुछ चाहिए, हमें हमारे 12 महीने का चाहिए, बाकी हम सब घटा के अलग कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेंट है वो कितना है? 65,000। अब हमें कैसे पता चला कि कितने महीने का? क्वेश्चन ने बता दिया कि इसमें 1 महीने का एडवांस मिला हुआ है। तो ठीक है, 12 महीने का हमारा रेंट ऑलमोस्ट होता है, लेकिन 1 महीने का हमने एक्स्ट्रा पे कर रखा है, तो इसका मतलब ये 13 महीने का रेंट है। इट इज ऑफ 13 मंथ। 13 मंथ का रेंट कितना है? 65,000। अभी हमें इसमें से 1 महीने का रेंट अलग करना है। ठीक है, तो 1 महीने का अगर रेंट अलग करना है तो हम इसे 13 से डिवाइड कर दें भाई, क्योंकि ये 13 महीने का अगर रेंट है तो 1 महीने का रेंट कितना होगा? 1 मंथ इज इक्वल टू 65,000 डिवाइड बाई 13, दैट विल बिकम लाइक 5,000। तो हमारा जो प्रीपेड रेंट आ गया, ठीक है, प्रीपेड रेंट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 5,000। और प्रीपेड के साथ क्या करते हैं? हम इसे करंट अपने रिलेटेड आइटम से इसे डिडक्ट करते हैं, और डिडक्ट करने के बाद इसे करंट ईयर, क्योंकि ये करंट ईयर का है, ठीक है, तो हम इसे करंट ईयर की बैलेंस शीट में रखेंगे एसेट्स की तरफ। अगर ये लास्ट ईयर का होता तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाता, ठीक है, लेकिन ये करंट ईयर का है तो हम 5,000 करंट रेंट से डिडक्ट करेंगे और उसके बाद इसे हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में रखेंगे। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट था सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। सभी जानते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो जोड़ना पड़ता है उस रिलेटेड एक्सपेंस में, और उसके बाद उसे हम किस ईयर का? करंट ईयर का, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रख देंगे। इसे भी मैं हटा दे रहा हूं। अब उसके बाद आगे हमारा सब्सक्रिप्शन। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको बता दिया गया है कि आपका सब्सक्रिप्शन 2,65,000 करंट ईयर का है। ठीक है, आपके सब्सक्रिप्शन में 2,65,000 रुपीज करंट ईयर के हैं, और लास्ट ईयर आप देखिए कि लास्ट ईयर का आपका सब्सक्रिप्शन कितना बाकी था। क्वेश्चन ने आपको बताया है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का 20,000 था, इस साल अभी भी 15,000 बाकी है। ठीक है, तो अब इस साल का जो 15,000 बाकी है ये हमारा फ्रेश सब्सक्रिप्शन है या इसमें पिछले साल वाला भी अभी कुछ एरियर मिला हुआ है। ठीक है, हमें इस बात को चेक करना होगा। आप अपने क्वेश्चन को दोबारा अपने सामने देख लीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन, इसे देखिए। देख लिया? ठीक है, 12,000 लास्ट ईयर का रिसीव हुआ था आपको,
12,000 लास्ट ईयर का रिसीव हुआ था, 2,65,000 इस साल का है और 5,000 आपको अगले साल के लिए मिला है। तो हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगे तो हमें सिर्फ हमारे करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन से मतलब होता है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हम लिखते हैं। तो करंट ईयर सब्सक्रिप्शन कितना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कितना है 65,000, 2,65,000। ठीक है, अब हमें इसमें इस साल का आउटस्टैंडिंग जोड़ना है। क्वेश्चन में हमें बताया गया कि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 20,000 था और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है 15,000। हम क्या माने कि क्या ये करंट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग है ये फ्रेश आउटस्टैंडिंग है, ये सिर्फ हमारे इसी साल का आउटस्टैंडिंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन कभी भी आपको ऐसा प्रोविजन नहीं देगा। क्वेश्चन जो आपको करंट ईयर का प्रोविजन में बता रहा है कि आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब ये मिक्सअप है। इस आउटस्टैंडिंग में थोड़ा इस साल का है और थोड़ा पिछले साल का है। अब आप जरा क्वेश्चन को फिर से गौर करके देखिए, उसमें लास्ट ईयर आपको कितना रिसीव हो चुका है? 20,000 बाकी था, जिसमें से आपको 12,000 रिसीव हो चुके हैं। ठीक है, अब गौर करके अपने क्वेश्चन को देखिए। 3 सब्सक्रिप्शन आपके लिखे हुए हैं। पहला सब्सक्रिप्शन 2016-17 का 12,000, यानी पिछले साल 20,000 बाकी था लेकिन 12,000 अब मिल चुका है। तो 12,000 अगर मिल चुका है तो अब आउटस्टैंडिंग कितना बचा? 8,000 हमारा आउटस्टैंडिंग बचा, जो कि इसमें एडेड है, क्योंकि ये जो हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, इसमें कुछ है हमारा करंट ईयर का और कुछ है लास्ट ईयर का, जिसे हम स्टिल एरियर कहते हैं। ठीक है, तो अगर लास्ट ईयर का स्टिल एरियर 8,000 है तो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का कितना हो गया? 7,000। तो हमें अपने करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमें हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा देना है। दैट विल बी, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो ये जुड़ जाएगा। तो हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा? 2,72,000। ठीक है, ये हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन हम ऐसा लिखेंगे, मैं भी सब्सक्रिप्शन की चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट में आपको क्वेश्चन में खुद ही बता रखा है, करंट ईयर का 15,000 है, करंट ईयर में लिख दो। लास्ट ईयर का 20,000 था, वो लास्ट ईयर वाले में लिख दो। और क्वेश्चन के अंदर जब ढूंढोगे तो आपको 3 टाइप के सब्सक्रिप्शन मिलेंगे। पहला 12,000, दूसरा 2,65,000, तीसरा 5,000। ये जो 5,000 है वो नेक्स्ट ईयर का है, तो नेक्स्ट ईयर वाला एडवांस होता है। आप उसे करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पोस्ट करो, क्योंकि हमेशा वहीं पे करते हो। ठीक है, आप उसको भी पोस्ट कर दोगे, उसके बाद नो प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान रहा। ठीक है, एडजस्टमेंट सारे हो गए। अभी एक हिडन एडजस्टमेंट हमारा बचता है, उसकी चर्चा करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम अपने हिडन एडजस्टमेंट की बात करेंगे। हम अपने हिडन एडजस्टमेंट जब बात करेंगे तो देखिए हमारे क्वेश्चन में हमको बता रखा है कि हमने, आप 500 पॉइंट पे इस पे देखिए अपने क्वेश्चन में, ये रहा आपके सामने अपना क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक 1,80,000। ठीक है, कब किया? 30 सितंबर 2017 को। 30 सितंबर 2017 को अगर हमने इस पर 1,80,000 रुपए बैंक को इन्वेस्ट किया तो इसका मतलब 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, क्योंकि हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट, आप इसकी डेट देखिए, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो 2018 में किया गया हमने। ठीक है, तो हम 2017 से जब सितंबर से काउंट करेंगे 31 मार्च 2018 तक, तो 6 महीने। इसका मतलब बैंक में जो हमने, ये देखिए इधर 1,80,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, वो हमने 10% से इन्वेस्ट किए हैं, मगर सिर्फ 6 महीने के लिए। ठीक है, तो हमें साल भर का इंटरेस्ट कितना होगा? आप इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हो। दैट विल बी डिवाइडेड बाय एंड दैट विल बिकम लाइक 9,000। साल भर का हमारा इतना इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, एट द सेम टाइम आपने क्वेश्चन में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 4,500 वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड। ठीक, आप अगर इसे देखोगे तो आपको ये रिसीव हो चुका है, आपके रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा है। तो अभी भी कितना रिसीव करना बचा है आपके लिए? अभी आपका आउटस्टैंडिंग बचा है कितना? 4,500। और ये आपकी इनकम आउटस्टैंडिंग है अभी भी। ठीक है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, तो आप इसे 2 जगह इसका ट्रीटमेंट दिखाएंगे। पहला ट्रीटमेंट आप इसका दिखाएंगे इनकम एंड, या सीधी बात जो हमारा आउटस्टैंडिंग होता है उसे हम कहते हैं एड विद रिलेटेड। हमारे ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आउटस्टैंडिंग है, उसमें जोड़ देंगे। और दूसरा करंट ईयर का है, तो इसे हम अपनी बैलेंस शीट के एसेट साइड में रख देंगे। ठीक है, अब आप अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फिर से एक बार चेक कर लीजिए। चलिए अब आपको आपके क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन दिखाते हैं।
सबसे पहले आपके सामने आपके क्वेश्चन में आपका ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आप इसे देखिए। एग्जैक्टली सारी की सारी वैल्यूज वही हैं जो आपको बताई गई थी, ठीक है। इसमें एक चीज आपकी नहीं है जो कि है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। आपने अगर 50,000 का फर्नीचर 37,000 यानी 50,000 फर्नीचर को आपने 37,000 का बेचा है तो 13,000 का आपको लॉस होगा, ठीक है। वो लॉस यहाँ पे मेंशन किया गया, अदरवाइज सारी की सारी चीजें नॉर्मल। राइट आफ्टर दैट आप अपने ये देखिए करंट ईयर की बैलेंस शीट, करंट ईयर की बैलेंस शीट आप देखेंगे तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आपको कुछ भी नया नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। खासकर आप ये फर्नीचर का पॉइंट देख लीजिए, 1,05,000 आपने नया फर्नीचर खरीदा, 1,20,000 आपके पास पहले से था और 50,000 का आपने बेच दिया, तो आपके पास कितना बचा? 1,75,000। और फिक्स डिपॉजिट आपका 1,80 का था, लेकिन उस पर एक्रूड इंटरेस्ट 4,500 बाकी है, उसमें जोड़ दिया गया है, ठीक है। और इस साल का सब्सक्रिप्शन 15,000 वो इस साल की बैलेंस शीट में है। राइट आफ्टर दैट आप इसके लिए देख लीजिए कि ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में आपका जो लिखा हुआ है 3,85,500 लाइक कैपिटल फंड 3,85,500 ये आया कैसे? तो उसके लिए आप अपनी देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट, लास्ट ईयर के सारे आइटम 1 by 1 इसमें लिखे हुए हैं। सब्सक्रिप्शन पिछले साल का 20,000 था, बुक्स ओपनिंग 50,000 थी, फर्नीचर 1,20,000 था, कैश 40,000 था और बैंक 1,55,500 था। ये कैश और बैंक दोनों हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बैलेंस भी नहीं है और सबको टोटल करेंगे तो हमारी कैपिटल फंड होगी 3,85,500। आई थिंक यू हैव गॉट दैट, ओके। सो दिस video is now about to end and I will upload the next video. Right now there is a question for you and this question is very tough, okay, so it will be there in my next video. Till then, good luck.